object of Times Medical Center is no malpractice. Don't have Patients don't have to pay extra money for their health. We do the maximum help to with minimum investigations. We treat them completely to their health. This is our aim in this hospital. We don't have a lab, we don't have X-rays, we don't have MRI, CT scan, and we don't have anything. Even ultrasound, we don't have. So that shows that we don't have any extra expenses for the patient. We love them. We want to treat them with our heart and with full recovery. We see that whatever they pay to us, we give them back in complete cure. We try our best to completely cure them. Though I am a I am a full postgraduate of this Spanish General Hospital, but to cure them, I have gone into alternative medicines also, in homeopathy, in ozone, in other things, and I advise my children to do the same, and they are doing the same. They are also into alternative medicine and adjuvant treatment and bioresonance scanning of the body, so that we want to help them. We want to help our community, whether it is poor or rich or whatever it is. We don't charge more to rich, or we don't charge much to poor people. And most of my patients are poor, and I don't charge them also. So and all of them have got practice since 1972. So it's about 55 years of continuous practice, and I've been practicing with the royal family of Saudi Arabia for 13 years, 30 years, and I have about 350,000 or to 4,000 patients, 400,000 patients in Saudi Arabia, and here in Hyderabad, after I returned from Saudi Arabia, I have about more than a lakh of patients who are coming without any publicity, without any newspaper, without anything. They all come by word of mouth. I am specialized in treating homeopathically with infertility treatment for males and females with our just consultation in the room only. See, even I am so richly experienced with all these things that all my patients, so many of more than 100 patients, they got conceived, they have got children, and also those patients who have got multiple abortions, multiple deaths of of the babies. Though I have done thousands of deliveries and thousands of surgeries in cesarean sections and laparoscopies, nowadays I am doing selective surgery, and but I can treat everything in gynecology with homeopathy. I have specialized in this, and Government of India approved this. With Ayush department invited me to give lectures in 12 cities, in 12 homeopathic medical colleges, to tell our students that homeopathy can treat gynecology completely without any hormones, without any antibiotics. So they were so much pleased. They invited me with their own expenses. They gave me tickets, 12 states. I went with Ayush department's help. I was invited first in Delhi, where Chief Minister was there and Ayush department was there with child and maternal health care way back in say 15 years back, and then they accepted my knowledge, and they chose me as the spokesperson for Ayush department in Delhi. So I'm fully equipped with my knowledge. I'm a very happy and very contented person. I don't run after money. I run money runs after me, and I treat my patients with full confidence. Thank you so much. See, all chronic patients they come to me, they come with reports. Even ultrasound done 3 months back, enough. Ultrasound done for ladies, infertile ladies. I don't never repeat them. Never. They say no. They do it again. Do it again. No. Headaches. Do MRI and come. No. We try to locate the problem clinically. Clinical is very important. I'm lucky to be in Spanish Hospital in 1970s, where our teachers and professors were excellent teachers. Dr. S.R. Rao, Dr. Shantinaran Mathur, Dr. Bansilal Vig, and so many professors we had. They were only stressing to the students clinical knowledge. At that time, only Usman General Hospital had only one X-ray unit. That's it, nothing else. That X-ray, that also you dip in water and try it.
not digital display also. So in that way, I was trained, and all my children, I taught them the same thing: be clinical, be clinical. And for all these things, they have to work very hard in learning MBBS. In MBBS, see, the basic foundation should be very good, so that they become clinically minded. बाबर हैं। मैं MBBS इंडिया से करी हूँ, डेक्कन मेडिकल कॉलेज से। इसके बाद मैं फैमिली मेडिसिन USA से करी हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा से। उसके बाद मैं फेलोशिप USA से करी हूँ इन बेरियाट्रिक मेडिसिन। बेरियाट्रिक मेडिसिन ओबेसिटी मेडिसिन कहलाती है, और मैं अमेरिकन बोर्ड ऑफ बेरियाट्रिक मेडिसिन की मेंबर हूँ। And I've been practicing obesity medicine since more than 15 years. मेरी प्रैक्टिस हैदराबाद में है, रोड नंबर 4 बंजारा हिल्स पे, टाइम्स मेडिकल सेंटर में। एंड along with obesity, 5 to 25 kilos आराम से हमारे पास weight उतरता है। And I use allopathy to make people lose weight, as well as मैं बहुत सारे treatments alongside allopathic modern medicine के अलावा मैं बहुत सारे treatments use करती हूँ, जिसमें जो है एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी है, इस्लामिक मेडिसिन है, कपिंग थेरेपी, ओजोन थेरेपी, एंड पेन ब्लॉक्स मैं देती हूँ फॉर क्रॉनिक जॉइंट प्रॉब्लम्स। एंड इसके साथ साथ लेटेस्ट आई एम स्पेशलाइजिंग इन एनर्जी मेडिसिन, जो काफ़ी न्यू है दुनिया के लिए, स्पेशली इंडिया के लिए, और बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि हम एक एनर्जी से बने हुए हैं, मटेरियल से भी बने हुए हैं, और मटेरियल से ज़्यादा हम एनर्जी से बने हुए हैं। तो जब एनर्जी डिस्टर्बेंस होता है बॉडी में, तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो सिर्फ मटेरियल चीज़ों से हम ठीक नहीं होते, एनर्जेटिक भी हमको ठीक होना पड़ता है, जिससे हमको मुकम्मल सेहत मिलती है। अगर ऊपरी सेहत होना है तो यूजुअली मटेरियल चीज़ों से ठीक होते हैं, लेकिन अंदरूनी सेहत, क्योर मतलब जिसको कहते हैं, वो होना है तो हमको अपनी एनर्जीज बैलेंस करना चाहिए। तो एनर्जी मेडिसिन में मैं सबसे बेहतरीन एनर्जी मेडिसिन होम्योपैथी होती है, तो वो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड बायो रेजोनेंस स्कैनिंग एंड मेटाथेरेपी फॉर माय पेशेंट्स टू। So we just want to know the cost-wise, the treatment as well as consultation, and also the medicines which you prescribe. Are they expensive or affordable by a middle class person? My treatment is very affordable. Has a range of treatment for patients. We are not as expensive as hospitals, obviously, and because I combine a lot of things. कम प्राइस में काफ़ी कुछ कॉम्प्रहेंसिवली ठीक होता है। ये नहीं कि सिर्फ ओबेसिटी ठीक कर दिए। मैं अगर कोई फीमेल्स आते हैं फीमेल प्रॉब्लम्स के साथ, जॉइंट प्रॉब्लम्स के साथ, इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ, आई ट्रीट ऑल ऑफ देम अंडर वन रूफ इन वन सिटिंग। तो उसमें जो है हमको कॉम्प्रहेंसिव क्यूरेटिव रिजल्ट आता है, मोटापा भी कम होता है, प्लस ऑल अदर प्रॉब्लम्स वो भी ठीक होते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, मेरे बाई प्रोफेशन मैं ओबेसिटी और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, और मेरा बाई क्वालिफिकेशन मैं MBBS डेक्कन मेडिकल कॉलेज से करा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन से करा, फिर मैं हैदराबाद आया, फिर मैं फेलोशिप चेन्नई से करा शुगर को ले लेके, फिर उसके बाद मैंने कई डिप्लोमास किए डायबिटीज़ और ओबेसिटी लाइफस्टाइल को एक कॉम्बिनेशन में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 साल की एक रिसर्च रही खाली मोटापे को लेके, मतलब मोटापा किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, और मोटापा और शुगर को जो कॉम्बिनेशन जो ट्रीटमेंट होता है, जो आज पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अहम चीज़ ये होती है, पेशेंट में हमेशा एक सोचते हैं कि भाई मोटापा तो कम हो जाता है, लेकिन मोटापा कम होने के बाद फिर मेंटेन कैसा होता है। सबको ये पूरी पब्लिक को, ये कौम को परेशान ये करती है कि भाई मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, 2 साल मैंने इस पर रिसर्च किया है, किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं इंसुलिन के डोजों को ले लेके, शुगर के डोजों को ले लेके, और ओबेसिटी को हम कैसा मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जिसमें मैं माहिर रखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के उससे बहुत शिफा मिली है मेरे पेशेंट्स को। अब मैं 2 अहम चीज़ें मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो एक स्टैटिस्टिक्स है पूरी दुनिया में। अगर हम देखें
मोटापा मोटापा और शुगर किस तरीके से आज लोगों की जिंदगी को खराब कर दे रहा, कुप्पा कर दे रहा। जैसा कि अगर आप हिसाब किताब लिए 800 करोड़ पूरी दुनिया में है, 800 करोड़ में आप ये सुन के चौकन्ने हो जाएंगे। 800 करोड़ में 400 करोड़ लोग मोटापे और शुगर से पीड़ित है। 400 करोड़ 2035 तक ये आंकड़ा हो जाने वाला है, 235 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुगर एक दीमक है, आप याद रखिए, शुगर एक दीमक है और मोटापा एक एटम बम है। ये दो इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हमारे माशरे को ये मालूम होना जरूरी है। ये टाइम्स मेडिकल सेंटर से की सोच है हमारा एक प्रिवेंशन हम करना चाह रहे कि ये सोच को हमको अगर घर अगर ये बात को पहुंचाना है तो यकीन मानिए सोशल प्लेटफॉर्म पे ही हो सकता है, और वो आप लोग हैं। आप लोग हमारी स्ट्रेंथ बनिए। आप लोग ही से हमारी जो बातचीत हम जो कर रहे हैं कि हर एक इंसान को, हैदराबाद के हर एक फैमिली को ये बात पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग जो मोटापे को और शुगर के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, महीने के कम से कम नहीं बोलते 5,000 रुपए लोगों का खर्चा होता है गोलियां खरीदने में और इंजेक्शनों में। 5,000 रुपए कम चीज नहीं होती। तो मेरा मतलब यहाँ पर यह है, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज जिंदगी में। आज जो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और दूसरी अहम चीज, आखिर मोटापा हो रहा क्यों? मोटापे से ही शुगर हो रही, ये बात रखिए। ये जड़ है, ये मोटापा जड़ है, और उसके पत्ते जो झाड़ के जो पत्ते बोलते हैं वो है शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक है, किडनी है, कि पूरा झाड़ खुल जाता है। एक रूट है मोटापा, इसको खत्म करो, डायबिटीज खत्म हो जाता। तो अगर हम देख रहे हैं तेलंगाना में 4 करोड़ पब्लिक है, पॉपुलेशन 4 करोड़ में 1,25,00,000 आज मोटापे से शिकार है, डायबिटीज से शिकार है। हर तीसरा आदमी तेलंगाना में मोटा है, हर 5वां आदमी तेलंगाना में डायबिटिक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारी कौम जारी का हमको क्या करना चाहिए। ये अहम मुद्दे हैं जो हमें सोचना चाहिए और इस पे हमें वर्कआउट करना चाहिए। अहम चीज, मैं आज जो ट्रेंड चल रहा, आज जो तेलंगाना में बोल के नहीं है, पूरे हैदराबाद में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? लोगों का खाना पीना, लोगों का रहना सहना। आज आप देखिए, पहला एक जमाना होता था, महीनों में 4 महीने में 2 महीने में बाहर जाके खाना खाते थे, मायूब बात समझी जाती थी कि बाहर जाके खाना खाना। आज क्या हो गया? हफ्ते में 3 बार लोग बाहर जाके खाना खाते। अगर 3 बार बाहर खाना नहीं खाए तो लोग बोलते रहे क्या भी फिर रही नहीं खाते ही नहीं, क्या नहीं लग जाता क्या लोगों को? एक मायूब बात समझ रहे। और एक होटल में फर्ज करो 4 लोग 2 बजे मिल रहे, अरे बाहर का, अरे मिल रहा है, सोचना कर रहा जब, अरे कहने होटलों को जा रहा जब। आज उसको टैग बना लिए, होटलों में जाके खाना टैग बन गया। घर का खाना भूल गए, घर के खानों का मजा जबान से निकल गया। अब खाली बाहर के खाना, जरा थोड़ा घर में कम ज्यादा मिर्ची रोड कम हो गई, खाना मंगा। और रात के 12 बजे देख लो, रात के 12 बजे से पूरे लोग पूरे फिरते थे बाइकों पे, कई के लिए फास्ट फूड। रात के 2 बजे बर्गर आ रहा, बिरयानी आ रही, हलीम आ रहा, रात के 2 बजे। ये हाल है हमारे माहौल का। तो रात का खाना पीना, रात का जो है, ये बहुत बहुत अहम चीजें हैं ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अहम चीज बोल रहा हूँ मैं आपको, ये बात गौर करने की है, और हमारे हर घर में ये बात पहुंच चुकी है। नींद, आज हमारी कौम सुबह फजर को सो रही, जो कुदरती तौर पे कब सोना चाहिए, 10 बजे सोना चाहिए, फजर में उठना चाहिए। लेकिन आज हम कब सो रहे? सुबह का वो रोशनी देख के जब नींद आ रही। कई को क्या वजह है ये चीजों की? सबसे अहम चीज, लेडीज में भी देख लीजिए, 10 लोगों को रात के 1 बजे बुलाया जाता और चाय पीने बैठनी है, रात के 12 बजे बुला रहे हैं और चाय पीने बैठने। अच्छी बात बोलना चाय, बुरी बात करना है तो चाय, किसी की गीबत करना है तो भी चाय पे बैठना है। चाय में कितनी शक्कर है, कितना वो है, अंदाजा लगाओ। चुप बैठे हुए हैं, जरा मौसम अच्छा हुआ, समोसे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मिर्चियाँ, भजिए सब आ रही है, बैठे खा रहे हैं बस खाली। तो ये अहम चीजें हैं। ये खाली टाइम्स मेडिकल सेंटर को हमको आगे बढ़ाने की बात नहीं चल रही। यहाँ पर हमारे कौम को मैसेज मिलना चाहिए। ये हमारे आज के जो बच्चे हैं, कल का फ्यूचर है। अगर आज हम ये बच्चों को नहीं बचा सकेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा यहाँ पर रात की नींद खत्म हो गई,
और बच्चे, जवान बच्चे कहाँ फिर रहे हैं? रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बाहर फिर रहे हैं। उनके हाथ में स्टिंग है, स्टिंग स्टिंग है, आपके बुल रेड बुल है, हाथ में सिगरेट है, रात में 2 बजे शॉर्मा चल रहा, रात के 3 बजे जाके बिरयानी खा रहे, 3 बजे। अंदाजा लगाइए, स्टिंग में 300 ग्राम कैफीन है, रात में 300 ग्राम कैफीन मार रहा उन्हें उन्हें फिर हाइपर हो जा रहा, हाइपर हो जा रहा, एकदम दिमाग, एकदम रगा खुल जा रहे हैं उसके, खुल के मंतखा, और 2 घंटे मंतखा, फिर घर को आए तक उन्हें पूरा ढीला हो जाता, ढीला होकर सो जाता। कब पर सोता? 6 बजे। और हमारे हमारे मेरे खास तौर पे मैं ये गुजारिश करूंगा, हमारे बच्चियां, हमारे बेटियां, हमारे बहनों को ये खास तौर पर गुजारिश है कि रात भर टिकटॉक पे है, टिकटॉक टिकटॉक होना और आपका इंस्टाग्राम होना, आपका सोशल चैट होना, जरा एक रील अच्छी आ गई समझो, वो रील में घुस जाते आधा घंटा चलेगा। यूट्यूब होना, टिकटॉक होना, सोशल प्लेटफॉर्म पे बस बैठे हुए, रात के 2 बजे बैठ रहे, सुबह 5-6 बजे तक क्या हल निकल रहा है इसका बोलो? टिकटॉक से क्या मिल रहा है आपको? कौन आपको लाके क्या देने वाला है वहां पर? तो कुदरती नींद खत्म हो गई यहाँ पर। और तीसरी अहम चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, आज हैदराबाद की दावतों का क्या हिसाब चल रहा, दावतों का। आज रात में मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ कि मैं एक दावत में हूँ, एक साहब आके बोल रहे अब तीसरी शादी में जाना है अटेंड करने, तीसरी शादी में जाना, पहली शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई, अब तीसरी शादी में जा रहा हूँ। तो पहली शादी में क्या मैनेजमेंट हो गया, पहली शादी में हलीम खाता हूँ या वो समोसे, वो क्या बोलते हैं उसको, लुखमी कबाब खा लेता हूँ और थोड़ा सा नहारी खा लेता हूँ। दूसरी शादी में जाके बिरयानी खींचता हूँ। तीसरी शादी में जाके क्या खाने का है? डेजर्ट खाना है, मीठे होना है। अच्छा, अंदाजा तो ये लगाओ, एक मील में 7,000 कैलोरीज आप कचरा डाल रहे पेट में, कचरा भर ले रहे मरने के वास्ते, कचरा 7,000 कैलोरीज खा रहे हैं। आप लोग कभी ये दिमाग पे अपने तकिए पे सर रख के सोचो, 7,000 कैलोरीज को बर्न करने के लिए कितना टाइम होना? 10 दिन होना आपको खाली बर्न करने के लिए, 7,000 कैलोरीज को बर्न करना है बोले तो 10 दिन मामूली बात नहीं है। फिर वो खाते, फिर अच्छी और खुशी की बात सुनिए अब आप, खाते के साथ ही फिर क्या होना, उसको हजम करने के वास्ते पुदीने की चाय होना, उसके ऊपर पाउडर मारते, पुदीना पुदीना पेट में जाके आपके 7,000 कैलोरीज को खत्म कर देता। क्या है भाई, क्या कर रहे जिंदगी का? सोचो आप लोग, इधर जाना चाह रहे हैं, अपनी कौम कहाँ जा रही सोचो। खाली दावतों में रहना, दावतों में खाना, चाय होना, चाय बैठना, रात में बस खाली फिरते रहना बाहर, एक कार के साथ बैठ के 10-10 बच्चे बैठ रहे हैं। ये आज हर एक घर में ये घुस चुका है। ये सोशल प्लेटफॉर्म, टिकटॉक, ये वो बस घुस गई ये बात दिमाग में। अब सबसे अहम चीज, अब ये मोटापा, फिर मोटापा नहीं होगा तो क्या होगा साहब? शुगर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए आप? हर तीसरा आदमी हैदराबाद शहर में, तेलंगाना हैदराबाद इज नोन फॉर द कैपिटल सिटी ऑफ डायबिटीज, कैपिटल सिटी बन चुका है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, सबसे ज्यादा मोटे पेशेंट आज हैदराबाद में मौजूद है। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं अपन बोलो, सोचो आप। तो मोटापन को ले लेके क्या कॉम्प्रोमाइज, आज पहले जमाने में शुगर नाम नहीं सुनते थे, शुगर नाम नहीं सुनते थे। आज मेरे क्लिनिक पे बच्चे आते 25 साल से 30 साल की उम्र में शुगर हो गया बोल के, एक शुगर बोतल 50 साल 60 साल लेके बैठते थे। आज क्या हो गया सुनती, 25 साल से 35 साल की उम्र में बच्चे मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से। कई को मर रहे हैं साहब हार्ट अटैक से, क्या रीजन है हार्ट अटैक से मरने का? खा रहे हैं, रात में 6-7 किलो खाना, 2 दावत आना, उसके दावत पे जाना, मंजों में जाना, सांचकों में जाना, पूरे लाइन से चल रहे हैं पूरे, खा रहे, स्टिंगा होना, सिगड़ा होना। तो क्या होगा हार्ट का? 50-50 किलो जिस्म पे लेके फिर रहे तो हार्ट कहाँ से काम करेगा साहब? मार मार के फट जाता। वैसे किडनियों पे प्रॉब्लम है, आज गुर्दे पे प्रॉब्लम कई को हो रहा साहब, किडनी पे कई को हो रहा, आज पेशेंट सीकेडी बन के कई को फिर रहे। मोटापा, शुगर, ये 2 चीजें ऐसे है जो किडनी को खा जा रही और हार्ट को खा जा रही। अब मोटापन की वजह से बच्चियां पीसीओडी, 13 साल की उम्र, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास जो मैं पेशेंट्स को देखता हूँ मेरे हॉस्पिटल में, 13 साल से लेके 20 साल की बच्चियों को पीसीओडी के शिकार है। पीसीओडी हम सुनते नहीं थे, पीसीओडी नाम नहीं मालूम था, आज शुगर के बराबर पीसीओडी को तारा कर दिया, पीसीओडी शुगर की तरह पीसीओडी को तारा कर दिए। क्या है पीसीओडी? पूरे बच्चों के हार्मोन्स को कुप्पा कर दे रहे, पूरे हार्मोन्स कुप्पा। अब ये बच्चे जब जवान होकर 21 साल की उम्र में जब शादी को जाते, फर्टिलिटी नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे साहब, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो, लाखों रुपए हॉस्पिटल को डालो, हार्मोन्स को फिर डालो, इन्वेस्टिगेशन को डालो, कि कहाँ जा रहा वो पैसा, कहीं को डाल रहे साहब हॉस्पिटल को डालने के बजाय। उससे अच्छा तो एक सिंपल छोटी चीज है, अरे कम खाओ भाई,
कम खाओ, रातों में जल्दी सो, कुदरती तौर पे अपना इस्लाम बोलता जल्दी सोना जल्दी उठना, वो छोड़ दिए। दावता होना, मजाक होना, कि बस खाली मंतखा होना, एक दूसरे की गीबत होना, बस ये चल रहा, बस पूरे हैदराबाद शहर में ये चल रहा। अब अमेरिका, लंदन, यहाँ थोड़ा सोबर तरीके से होते होंगे, लेकिन ये चल रहा वहां पर भी, हर जगह। पूरी दुनिया परेशान है मोटे पे शुगर को ले लेकर। तो मेरी एक ही गुजारिश है, खुदा के वास्ते ये मोटापे को कम करो, कम खाओ, अच्छा चलो। 80%, ये स्टैटिस्टिक्स पर मेरे खुद के स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये जर्नल्स है, ये वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के ये स्टैटिस्टिक्स है कि 80% अगर आप मोटापे को कम करना है तो कम खाओ, कम कचरा डालो पेट में। पेट तो प्लास्टिक बैग है, डालो फुलता, कितना करेंगे, कितना मारेंगे, और एक उम्र आके गिरनी बंद हो जाती। लिहाजा यहाँ पर हमारे को कम करना पड़ेगा। 10% एक्सरसाइज पर डिपेंड होता है, 80% कैलोरी पर डिपेंड करता है, क्या खा रहे हैं आप रोज का। ये मेरी खास तौर पर गुजारिश है आप लोगों से। हमारी वास्ट नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी वास्ट नॉलेज है, हमारा वास्ट एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में, टाइम्स मेडिकल सेंटर में, हमें होलिस्टिक अप्रोच देते, होलिस्टिक, हमारा माइंड खुला हुआ है। हमारा किसी के ऊपर ये गोलियां नहीं काम करते, उसके ऊपर नहीं काम करते। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इन्वेस्टिगेशन पे लोगों के जेबों को कम खर्चा करके, उनकी अच्छी हिस्ट्री टेकिंग लेके हम उनको दवाएं देते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ये बस गर्व से बोल सकता हूँ और बस जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ से लोग 2 हाथ उठा के दुआ दे के जाते हैं हम लोगों को, 2 हाथ उठा के दुआ दे के जाते हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह माँ उन सबकी दुआएं हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं, हमारी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोच को, अगर हैदराबाद शहर को अगर अच्छा देखना चाह रहे, हमारे बच्चियों को, बहनों को अच्छा देखना चाह रहे, तो खुदा से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस चीज को वायरल करो, आप वायरल करो, जितना वायरल कर सकते हैं आप करिए प्लीज। तो लिहाजा आज मोटेपन से कमर के दर्द, घुटने पूरे घसे जा रहे, पूरे घुटने घस गए। अब ठीक है, कर लेते बेटो, 5-5 लाख रुपए डालते, किसके पास है जी 5 लाख रुपए डालने, बताओ आप। 5 लाख रुपए तो कम है तो मोटापा कम रहता। अब पीछे कमर जाके डिस्क प्रोलैप्स हो रही, डिस्क हट जा रहे, सरक जा रहे। अब हमारा यहाँ करो, उसके पीछे पैसे डालो, फिजियोथेरेपी करो, लाखों रुपए डूब गया वहां पर। अरे खाली कम खाओ, रोज एक टाइम। अब जब एक टाइम खाना खा रहे तो आखिरी खाना समझ के कहीं को खा रहे भाई, और अभी जिंदगी पूरी पड़ी है खाने को, कम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, जिंदगी हम खाते रहो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा ये मोटापे की वजह से हड्डियां खत्म, कमर, लो बैक पेन, हड्डियां पूरे घसे जा रहे, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, जवान बच्चों को बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मेल इनफर्टिलिटी, कुप्पा हो गए साहब मेल इनफर्टिलिटी। पहले आदमी पेट इतना बड़ा है, पहले पेट निकलता फिर आदमी पीछे आता, ये हालत हो गई ये हालत कर दी हमारे हैदराबाद की। तो खुदा के वास्ते ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वास्ट नॉलेज है, वास्ट एक्सपीरियंस है, आप लोग आइए। हम 5 से 50 किलो वजन कम करते, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है हमारे को, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हमारे कोई मशीन की जरूरत नहीं है। आज 17 साल से मैं डायबिटीज और ओबेसिटी में ट्रीट करता हूँ, और बिल्कुल दावे से बोल रहा हूँ मैं आपको कि मैं बगैर कोई साइड इफेक्ट के वेट को मेंटेन करते हुए, उनके शुगर्स को कंट्रोल करते हुए मैं यहाँ पर मेंटेन कर सकता हूँ। अल्लाह आप लोग को सबको हिदायत दे। के लिए सबसे पहले मैं आप तमाम सहाफ़ी मेहमानों का टाइम्स क्लिनिक पर खैर मक़दम करता हूँ। तो यहाँ से जो 3 ज़रूरी बात जो हमें को समझ में आई है, पहला है एक लेगेसी है कि टाइम्स क्लिनिक की 130 इयर्स ऑफ लेगेसी है, बट वी डू बिलीव इन अ शेयर ऑफ मिर्ज़ा गालिब विच सेज रगों में दौड़ते फिरने के है हम नहीं खाए, रगों में दौड़ते फिरने के है हम नहीं खाए, जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। So just because we have certain legacy, it doesn't mean कि we are privileged. We work very hard and we try our best to cure people, ठीक है। And medicine comes with a lot of responsibility. हमारे हाथ में खुदा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और जिसका मैं चाहता हूँ कि we fulfill it. दूसरी बात जो आई गेस आप लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ के बारे में तो ऑलरेडी मालूम है, बट विद रीसेंट नीट के बारे में जो चल रहा था, उसके लिए मेरे पास भी एक स्टोरी है। तो विद द पोस्टपोनमेंट ऑफ नीट, एक बच्चा था जो हमारा ही भाई है, ही वाज
very ill and mentally disturbed. And unfortunately रीनीट जो था बस 1 महीने के बाद था. And if you know medicine, you know that certain medicines, जो anti-psychiatric medicines है, it takes 4 to 6 weeks to start working. उतना टाइम एक स्टूडेंट के पास होता नहीं है. बट विथ माय मदर इन लॉस मेडिसिन ही फाउंड क्योर वेरी फास्ट, और ही ऑलवेज कीप्स हर इन हाई प्रेजेस. तो बस इसी के साथ मैं आप लोग से